Hello, good morning. Our today's topic is Buddhist architecture. So there are three main types of Buddhist structures: stupas, vihars, and chaityas. So first of all, we will know about the viharas. Initially, viharas were temporary shelters used by wandering monks during the rainy season. As the time passed, the permanent shelters were needed, so monasteries were built. These were known as vihars. तो जो मॉन्क्स थे वो जब चलते फिरते रहते थे, दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जब रेनी सीज़न होता था तब वो शेल्टर्स लेते थे केव्स में। ओके, तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि ये परमानेंट शेल्टर्स बन गई, जिसको विहार कहा जाता है। हेयर यू कैन सी द रॉक कट विहार, नासिक एंड इलोरा। नेक्स्ट इज चैत्यास, Buddhist prayer hall that houses a stupa. The word Chaitya is derived from the Sanskrit word Chita, which means a pyre or a pile of ashes. Okay. Next आ जाता है हमारा स्तूप। स्तूप क्या थे? Okay. तो there were places too that were regarded as sacred. Okay. This was because relics of Buddha, such as his bodily remains or objects used by him, were buried there. These were mounds known as stupas. According to the Buddhist text Ashokavadana, Ashoka distributed portion of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupa over them. By the 2nd century BCE, a number of stupas, including those at Beirut, Sanchi, and Sarnath, had been built. Okay. देन हाउ वर स्तूपास बिल्ड, स्तूप कैसे बनाए जाते थे? तो जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं इवन स्तूप्स के डोर्स के ऊपर, तो वो हमें बताती हैं कि स्तूपास वर मेड ऑफ डोनेशंस मेड बाय किंग्स, गिल्ड्स एंड वुमेन एंड मेन. ओके, भिक्षुज एंड भिक्षुनीज आल्सो contributed towards building these monuments. Then has structure of the stupa. The stupa were simply semi-circle mound of earth, later known as anda. The semicircular mound flattened on the top was the harmika, and harmika was the balcony-like structure indicated the abode of gods. Rising from the harmika was a mast known as yasti. It was surmounted by a chhatri or umbrella. Okay, you can see here the structure. Okay, structure of स्तूप. स्तूप होता क्या है? सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ अर्थ, लेटर कॉल्ड आंडा. above anda was a harmika, balcony like structure. Arising from the harmika was a mast called yasti, surmounted by a chhatri or umbrella. Okay. The whole structure is covered by a massive stone railing which resembled a bamboo, a wooden fence with 4 gateways on the cardinal points. The design of stupa underwent many developments. Amravati and Shahji Ki Deri, the mount came to be elaborately carved with the niches and sculpture. Once again, फीचर्स ऑफ स्तूपा देख लेते हैं हम. ओके, होता क्या है? ए माउंट कंटेनिंग द बॉडली रिमेन्स ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स. देन ए प्रदक्षिणा पाथ अराउंड द स्तूप. देन रेलिंग सराउंडेड द पाथ. गेटवेज एट 4 cardinal points. Gateways and railings were decorated with sculpture. Harmika on the top of the stupa, dwelling place of gods. You can see here Sanchi स्तूप and Sarnath स्तूप. Okay. Then आ जाता है स्कल्पचर, मूर्ति कला. तो मूर्ति कला से भी हमें बुद्धिज़्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है. तो लेट्स सी.
स्टोरीज इन स्टोन्स। ओके, ये जो फिगर है 4.13, इनिशियली अगर हम देखें तो ये एक गांव का सीन लगता है, बट जब हिस्टोरियन इसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट लाइक वसंतरा जातक, तो हमें पता चलता है कि ये एक काइंड प्रिंस की स्टोरी है जिसने अपना सारा कुछ जो है ब्राह्मणों को दान दे दिया और अब खुद जो है अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहने के लिए चलेंगे। तो ये दान की जो स्टोरी है वो हमें बताती है। नेक्स्ट, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। हेयर यू कैन सी द फिगर 4.14, 4.15 एंड 4.16। तो ये सिंबल्स हैं वर्शिप के, जिसमें लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन शोन थ्रू द सिंबल्स, पीपल ट्री, एम्प्टी शीट, स्तूप, मोशन ऑफ व्हील। इनके थ्रू जो है लॉर्ड बुद्धा को दर्शाया गया है। देन है पॉपुलर ट्रेडिशंस। बहुत पहले से चली आ रही कुछ ट्रेडिशंस थी जिनको बुद्धिज़्म के स्कल्पचर में दिखाया गया है, जैसे कि द इमेज ऑफ ए ब्यूटीफुल वुमन दैट इज स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे डिस्क्राइब्ड एज शाल भंजिका। ये शाल भंजिका की मूर्ति है। whose touch caused trees to flower and bear fruits. Okay. Then एक और इमेज है, elephants were depicted to signify strength and wisdom. Okay. तो डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एज सिंबल्स ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट। जो एलिफेंट्स हैं वो स्ट्रेंथ और विजडम को दर्शाने के लिए यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट 4.19, वुमेन सराउंडेड बाय द लोटसेस एंड एलिफेंट्स। कुछ हिस्टोरियन जो हैं आइडेंटिफाई द फिगर एज माया, द मदर ऑफ बुद्धा, अदर आइडेंटिफाइड हर विद पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। ओके, तो एक और जो इमेज है that is the serpent at Sanchi. It is found on the several pillars, seem to be derived from the popular tradition which were not always recorded in text. Okay, तो ये जो स्कल्पचर है इसको, ये अपने आप तो कुछ नहीं बताता, लेकिन इसको समझने के लिए हमें अदर सोर्सेस लाइक टेक्स्ट की जो है सहायता लेनी पड़ती है। एक और टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, दैट इज़ मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। तो जो भी हमने अभी इसमें पढ़ा चैप्टर में, जो भी प्लेसेस पढ़ी हैं वो हमें मैप वर्क में करनी है, जैसे कि यू कैन से लुम्बिनी, ओके, कुशीनार, सारनाथ, बोध गया, नासिक, ओके, बहरूट, सांची, लुम्बिनी। ओके, तो ये सारी प्लेसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो इसका एक ड्रिल वर्क आपने करना है। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसकी असाइनमेंट बनती है, व्हाट वर द स्तूपास, हाउ एंड व्हाई वर स्तूपास बिल्ड। ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आई होप आप इसको अभी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।